Good evening, everyone. So we'll be starting with analog electronics. So before proceeding on to analog electronics 1, which will include diode, transistors, MOSFETs, FETs, op-amps, and so on. We have analog 1, analog 2, analog 3. Means Abhi, you are in second semester, I guess? Yes, ma'am. Yes. In second semester? Yeah? Yes, Anyone? Okay. So we have analog electronics in semester number 2, semester number 3, and semester number 4. So we need to start with the basics of electronics, which is just the core of electronics, I guess, which you all have studied in 9th and 10th as well. To proceed with the diodes and transistors, we need to have the basics of electronics. In order to learn about the basics, diodes कैसे बनते हैं, किसके होते हैं, ट्रांजिस्टर कैसे बनते हैं, किसके बनते हैं, हमें पहले बेसिक पता होना चाहिए कि उसमें से पी एन टाइप क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है. सबसे पहला क्वेश्चन ही ये आता है सेमीकंडक्टर क्या होता है. तो वी हैव different types of materials. We have 3 types of materials named as conductors, semiconductors, और insulator. or insulators. Can anyone of you tell me what are conductors? जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है अच्छे से, मतलब ठीक है. The one who can pass the electricity from within, they are known as conductors. Can any one of you give me an example of conductors? मैम कॉपर, मैम Copper and सिल्वर, silver, gold. Okay. And what about semiconductors? What about इनकी semiconductors? रेजिस्टिविटी इंसुलेटर एंड कंडक्टर के बीच में होती है. Okay, जिसकी जो कंडक्टिविटी है, which lies between, इनकी जो कंडक्टिविटी है, which lies between, रेजिस्टिविटी मैम, इनकी कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं ना, that lies between conductors and insulators, right? अभी रेजिस्टिविटी के बारे में भी बात करेंगे. Now we are talking about insulators. What about insulators? जिसमें करंट फ्लो नहीं करता, नहीं करता, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती. Example? मैम ग्लास, वुड, Glass, wood, mica. ठीक है? प्लास्टिक. So that is mica only. Okay. Now we'll learn about something related to resistivity. What is resistivity? Denoted by rho. What is resistivity? Can anyone of you tell me what is resistivity? R is equals to rho L by A. ये सबको फॉर्मूला पता है? yes So resistance is directly proportional to the length and inversely proportional to the area. क्रॉस सेक्शन. And when we remove that a proportionality constant, we got this rho. So this rho is the resistivity, right? Resistivity is related to a material, which is specific for a material. Resistivity is given as R into A by L. What is the unit of this resistivity? R Ohm meter. Resistance Ohm meter. Then meter का square by meter. So means the answer is ohm meter. Right? Am I correct or not? Yes, ma'am. Okay. So now we are talking in terms of resistivity. So for resistivity conductors की high होनी चाहिए या low होनी चाहिए? मैम लो होनी चाहिए. Low होनी चाहिए. मतलब अगर कम है तो मतलब current की passage बहुत ज़्यादा है. Since resistivity is directly proportional to the resistance. अगर resistivity कम होगी तो resistance कम होगा. So in case of conductors, we are talking about for copper. So for copper, the resistivity is 10 to the power minus 6 ohm centimeter. So resistivity is specific for a particular material. हर टाइप के मटेरियल के लिए स्पेसिफिक है. मतलब अगर मैं कॉपर की बात करूंगी तो उसकी स्पेसिफिक है, अगर मैं माइका की बात करूंगी तो उसकी स्पेसिफिक है, राइट? So for copper, it is 10 to the power minus 6 ohm meter. You can see कितनी कम है, right? Now we are talking about the resistivity of semiconductors, right? मैम वहाँ आपने 10 to the power minus 6 ohm सेंटीमीटर लिखा है. हाँ जी, ओम सेंटीमीटर के, मतलब हम ये सेंटीमीटर के टर्म्स में बात कर रहे हैं, नॉट फॉर मिलीमीटर्स. ठीक है? So now we are talking about the resistivity of silicon. So
अच्छा, सेमीकंडक्टर्स की एग्जांपल क्या है? सिलिकॉन और जर्मेनियम, जर्मेनियम। right? So that is what 50 into 10 to the power 3 ohm meter. And for germanium, it is 50 ohm meter. Now we are talking about the resistivity of insulators. So insulators की कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए? ज्यादा हाई हाई होनी चाहिए। So we are taking an example for mica. It is 10 to the power 12 ohm meter. 10 to the power 12. So can we conclude from this thing? कुछ conclude कर सकते हैं resistivity से? सबसे ज्यादा resistivity किसकी होती है? इसका मतलब insulators की, है ना? So the resistivity of these semiconductors, they lie between the resistivity of conductors. इनसे ज्यादा होती है और insulators से कम होती है. So this is what we have concluded from the resistivity part of the materials. Can you all see this? Yes. Yes. And what about जितनी resistivity होगी उसका opposite current होगा. अगर resistivity ज्यादा है तो current कम होगा. इसका मतलब current conductors का सबसे ज्यादा है, उसके बाद semiconductors का है, and then we have for insulators. Insulators में बहुत ही कम current flow करता है. Is this clear to everybody? हम materials की just एक small सी specification classification पढ़ रहे हैं कि हम materials को कैसे distinguish करते हैं based on their conductivity, कि कितना current वो flow करेगा, right? Now we would like to distinguish these materials on the basis of their band diagram. Okay. So now I wanted to study the band diagram of these conductors and semiconductors, right? अच्छा, हम ये बताएंगे कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड किस किस को पता है? What are वैलेंस बैंड, what are conduction bands? किसी को वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का कंसेप्ट पता है? मैम आई थिंक वैलेंस बैंड में जो आउटर मोस्ट शेल में कितने मतलब सेल होते हैं उसी के वो होता होगा. अच्छा, और कंडक्शन बैंड में what are valence and what are conduction band? Okay, सबको ऐसे तो पता है ना कि हमारा एक किसी भी सपोज मैं एग्जांपल ले तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है भाई? 14. 14. Very nice. So the configuration will be 2, 8 and 4, right? So in the innermost orbit where the nucleus is lying, this is nucleus, ठीक है? Which consists of neutrons and protons. Nucleus में क्या होता है भाई? Neutrons plus protons, right? इसके साइड में हमारे orbits होते हैं, है ना? Which are denoted by K, L, M, N and so on. So silicon के K orbit पे कितने electrons होंगे? 2 electrons. What about in L? We will be having 8 और M में कितने होंगे? 4. Is this clear? Okay. Yes. So this is A, this is L, and one more we have M. This is just to give an idea to you, right? So now in case shell we have 2 electrons, right? In L we have 8. And in M we have 4. Can you all see this? Yes, ma'am. Okay. So now what happens is जो outermost orbit होता है ना, outermost orbit, इसका outermost orbit कौन सा है भाई? 4 सबसे outermost orbit जो है वो हमारा है M का, ठीक है? M shell जो है, ठीक है? अब जो ये outermost orbit है ना, ये split हो जाता है between the two. और इसकी splitting इस तरीके से होती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्राउंड स्टेट में होते हैं वैलेंस बैंड में, और अगर उनको थोड़ी सी एनर्जी देते हैं तो वो कहाँ जंप हो जाते हैं? हमारे कंडक्शन बैंड में. तो इसका मतलब जो लास्ट का जो ऑर्बिट है वो स्प्लिट हो जाता है 2 बैंड्स में, which are known as वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड. तो एट प्रेजेंट जब कोई भी एनर्जी आप किसी भी मटेरियल को नहीं देंगे
तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? वैलेंस बैंड में। और जब आप उसको थोड़ी सी एनर्जी दे दोगे तो वो कंडक्ट करने लगेंगे इलेक्ट्रिसिटी और वो कहाँ पहुंच जाएंगे? हमारे कंडक्शन बैंड। कंडक्शन So this is the concept of valence band and conduction band. This last orbit gives rise to two bands which are known as valence band and conduction band. कंडक्शन बैंड। ठीक है, ये बेसिक सबको पता है या फिर अभी पता चला है? ये किसी को पहले पता था या फिर अभी पता चला है? Okay, no response. So now we have the energy band diagram for conductors, semiconductors and insulators, right? So we have for conductors, अभी हमारे पास क्या है भाई? देखो, कंडक्टर। हर एनर्जी बैंड में we have a valence band and a conduction band. इसमें किसी को दिक्कत है? नो मैम। Okay. Now, the gap between the valence band and the conduction band is known as the band gap, which is denoted by ET or sometimes E naught, right? फॉरबिडन गैप। Also, this is also known as forbidden band gap, forbidden gap, forbidden gap, right? So you can call this as band gap, you can call this as forbidden gap. Forbidden का क्या मतलब होता है? मतलब not allowed state, जिसमें भी कोई भी चीज allowed नहीं है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है ना, तो he or she, I mean, the electron has to jump from valence band directly to the conduction band. It cannot lie in between the states. इन states में नहीं रह सकता। जो हमारी states है forbidden gap की, वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। So the electron has to jump from here to directly to the conduction band. Clear to everybody? इसलिए हम इसको forbidden बोलते हैं। Forbidden means not allowed states, which is not allowed. You are forbid to do the cheating. मतलब आपको forbid है, मतलब you are not allowed to do the cheating, right? So this is forbidden, मतलब allowed नहीं है यहाँ पे. So for the case of conductors में EG कितना होता है भाई? Forbidden gap कितना होता है EG में? Conductors में कोई भी गैप नहीं होगा. They are overlapped each other. Conduction band और valence band दोनों क्या होते हैं हमारे? Overlapping state. ओवरलैप। ठीक है? So means EG is equals to 0. अच्छा, EG की जो यूनिट है वो क्या होती है? What is the unit of EG? It is electron volts. अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की वैल्यू कितनी होती है? This is equals to 1.6 into 10⁻⁻19 joules. एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में इतनी एनर्जी होती है 1.6 into 10⁻⁻19 joules. Now next we have semiconductors. So for semiconductors, this EG is approximately equals to 1 electron volts. So this EG is like that. This is valence band, this is conduction band, and this is EG. इस EG की semiconductors में वैल्यू कितनी होगी? 1 electron volts. Now we have different values for silicon as well as for germanium. So for silicon we have 1.16 electron volts, and I guess for germanium we have 0.76 electron volts. ठीक है? अब now the question arises is, I have just said, I'll explain it in another slide. Silicon का जो EG है, I said it is 1.16 electron volts. Can you all see this? Can you all see this? Yes, ma'am. While for germanium, it is approximately 0.75 or 76 electron volts. Okay. अब भाई EG का मतलब है उसका forbidden gap सिलिकॉन का बहुत ज्यादा है और जर्मेनियम का बहुत ही कम है. तो जिसका बहुत ज्यादा है, फिर भी हम सिलिकॉन की वैल्यू सारी चीजें सिलिकॉन की आ रही हैं. आप अपने रिमोट की चिप देखिए, अपने फोन की चिप देखिए, अपने लैपटॉप में चिप्स देखिए, अपने पीसीज में चिप्स देखिए, अपने टीवीज में चिप्स देखिए, अपने टॉयज में चिप्स देखिए. एवरीथिंग इज ऑफ सिलिकॉन. इट इज नॉट ऑफ जर्मेनियम. व्हाई? भाई EG भी इसका ज्यादा है, इसका कम है. तो ऐसा क्या हो गया कि हमने सिलिकॉन को सिलेक्ट कर लिया और फिर जर्मेनियम को छोड़ दिया?
सारी पूरी अच्छा in colleges how many units have been covered yet? Can you all hear me? Yes, ma'am. तो कितनी units हो गई आपके colleges में? मैम 2 2. So 2 मतलब आपके मैम diodes सेकंड cover पे हो गया है. होगा? Diodes cover हो गया होगा I guess? Yes, ma'am. Yes, okay. So अगर आप डायोड्स तक पहुंच गए हो तो ये तो पता ही होगा ना कि सिलिकॉन के बारे में ज्यादा पढ़ा रहे हैं. क्यों पढ़ा रहे हैं सिलिकॉन के बारे में? पी टाइप सिलिकॉन, एन टाइप सिलिकॉन. क्यों? सेमीकंडक्टर में बार बार सिलिकॉन का ही क्यों नाम दिया जाता है, जबकि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बोथ आर ग्राउंड ब्रेकिंग सेमीकंडक्टर्स व्हिच कैन डिग द ग्राउंड. सिलिकॉन हाई टेम्परेचर पे वर्क कर सकता है एज अकॉर्डिंग टू जर्मेनियम. ओके. और अच्छा इस कंटेक्स्ट में बताओ कि सिलिकॉन का बैंड गैप इससे ज्यादा क्यों है जर्मेनियम से? ये तो बता सकते हो ना कि बैंड गैप क्यों है ज्यादा. चलो अच्छा आई एक्सप्लेन. देखो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है अभी मैंने बताया 14. सो दिस इज 2 8 एंड 4. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होगी ना. तो कितने शेल्स बनाऊं इसमें? कितने शेल्स बनाऊं? ये हमारा न्यूक्लियस है A L एंड देन M. अभी बनाया ना मैंने, ये तो मैंने अभी सिखाया है. Am I Yes, clear? Yes, Okay. Now we are talking about germanium. Germanium का atomic number is 32. 32. Very nice. So for 32, we have the electronic configuration as 2, 8, 2, 8, 18, 4. 18. 4. गलत गलत गलत. 2, 8, 18 and 4. जिसने 8 दोबारा बोला वो गलत. 2, 8, 18 and then 4. ठीक है. तो ये न्यूक्लियस है. कितने सेल्स हैं? Now we are denoting it with red. We have K, L, M and then N. N. Now we have K, L and then N. Can you all see this? यस Yes, मैम ma'am. So we have 4 shells over here. 1, 2, 3 and then 4. 1, 2, 3, 4 है और यहाँ पे कितने हैं हमारे? 3. अच्छा ये बताओ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1, 2, 3 and then 4 और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे which will be 1, 2, 3 and then 4. इस न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होगा या इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा? मैम सिलिकॉन ज्यादा होता है. Silicon. क्यों? सिलिकॉन का क्यों ज्यादा होगा भाई? मैम शेल्स कम है उसमें. शेल्स कम है. वेरी शेल्स नाइस. का और बस यही टाइटली आंसर है. पैक्ड है. इसमें शेल्स कम है. हम जर्मेनियम में शेल Very ज्यादा है nice. इसलिए. Very nice, very nice. The one who has given this answer, he or she is very nice. जितने नंबर ऑफ शेल्स कम होंगे उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस विल बी मोर एज कंपेयर्ड टू द जर्मेनियम वेयर वी हैव नंबर ऑफ शेल्स एज 4. तो इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन में इसका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस विल बी लेस. इसलिए यहाँ पे हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए to extract the outermost electrons. Energy is more. इसीलिए इसका Eg जो है ज्यादा है as compared to जर्मेनियम. जर्मेनियम में हम थोड़ी सी एनर्जी देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप हो जाता है? कंडक्शन पैड में. बात समझ में आई सबको? ये यस मैम. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फर्स्ट यूनिट से पूछा जाता है कि Eg सिलिकॉन का ज्यादा है, क्यों ज्यादा है as compared to जर्मेनियम? So this is the answer. Are you all getting me? Are you all getting Yes, me? ma'am. Okay. So now let's come on to back to the band diagrams. So for we were talking about silicons. We were talking about semiconductors. Semiconductor में silicon का ये होता है band diagram और germanium का 0.76. Now we are talking about the insulators. Insulators में क्या होगा भाई? Highest Eg होता है. So this Eg is 2 more. It is approximately equals to 6 electron volts. 6 electron volts होता है और ये मेरा valence band है और ये मेरा conduction band है. इसका मतलब the conduction of electricity is nearly impossible in case of insulators. इसके बीच में Eg 6 electron volts है और 1 electron volt is equals to 1.6 into 10⁻⁻19 joules. कितनी एनर्जी चाहिए? तो सोचो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी एनर्जी लेगा. तो इसका इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जंप करे ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है. कैन यू ऑल सी द बैंड डायग्राम डिफरेंस? कंडक्टर्स के केस में इट इज ओवरलैपिंग. Overlap. In case of semiconductors
the band gap is nearly equals to 1 electron volts. While in the case of insulators, the band gap is too High. large, right? Now we'll switch on. To the covalent bonding. अच्छा, किसी को कुछ पता है कि ये सेमीकंडक्टर्स के केस में किस टाइप के बॉन्ड्स होते हैं? हमारे पास बहुत सारे टाइप के बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, मेनी मोर. हमारे सेमीकंडक्टर्स के केस में हमारी जो बॉन्डिंग है वो कौन से टाइप की होती है? कोवेलेंट. मैम कोवेलेंट. कोवेलेंट बॉन्डिंग किस टाइप की होती है? सपोज ये मेरा सिलिकॉन का एक एटम है. कैन यू सी द सिलिकॉन एटम? Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. So this silicon atom has 4 number of electrons in its outermost shell. Now we'll be talking about the outermost shell only. बीच वाली जो है वो क्या है? वो ऑलरेडी फुल्ड है. K शेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, L शेल में हमारे 8 आ सकते हैं, लेकिन M में हमारे फिर से 8 आ सकते हैं. तो वो क्या करेगा? अपने आप को क्या करने की कोशिश करेगा? कंप्लीट करने की कोशिश करेगा. क्या करेगा? कंप्लीट करने की कोशिश करेगा. कंप्लीट का मतलब क्या होता है? साइंटिफिक टर्म्स में हम इसको क्या बोलते हैं? ऑक्टेट को कंप्लीट करना. वेरी गुड. ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा. बिल्कुल. तो अपने ऑक्टेट को कैसे कंप्लीट करता है कि उसके जो नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स है उनके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना? कैन यू सी 4 इलेक्ट्रॉन्स विद द अदर सिलिकॉन एटम्स? Yes, ma'am. तो जो नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स हैं उनके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो क्या करता है ये जो सिलिकॉन है? थोड़ी समझदारी दिखाता है. ये कहता है भैया ना तो मैं तुझे दे सकता हूँ और ना मैं तुझसे ले सकता हूँ. भाई सामने वाले से ले लेगा तो उसके भी तो 0 हो जाएंगे ना, दे नहीं पाएगा. तो क्या करता है ये? He said to another atom of silicon that let's share the atoms. Sharing means मेरे पास भी उतना ही रहेगा, तेरे पास भी उतना ही रहेगा, लेकिन मेरे ऑक्टेट्स कंप्लीट हो जाएंगे. So this type of sharing is known as the covalent bonding between the silicon atoms. Can you see the red marks? Yes, Yes, ऐसे ma'am. यहाँ पे और जो सिलिकॉन एटम्स होंगे उसके साथ ही क्या कर लेता है? कोवलेंट बॉन्डिंग कर लेता है. So this type of bonding is known as the covalent bonding. क्यों करता है कोवलेंट बॉन्ड? In order to get the शेयर करता है क्योंकि शेयर करता है. क्यों करता है? ताकि अपने उसका लास्ट ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाए और फिल हो जाए, basically कंप्लीट हो जाए. एक स्टेबल स्टेट में पहुंच जाए. In order to get the stable state. Okay, so this arrangement of silicon atoms in such a manner that the bonding is formed between the silicon atoms is known as the lattice. इसको हम क्या बोलते हैं? Lattice. इस complete structure को हम क्या बोलते हैं? Lattice. क्या बोलते हैं भाई? Lattice. Lattice. It is the arrangement of atoms in such a way that each silicon atom shares its outermost electron with the another silicon atom, and hence they form a structure like this, which is known as lattice. LATTIC. Clear to everybody? Yes, ma'am. Okay. So next is we have types of semiconductors. कितने टाइप्स के होते हैं सेमीकंडक्टर्स? 2 टाइप. टू टाइप. कौन से? Intrinsic and Intrinsic और extrinsic. Intrinsic and extrinsic. So we have 2 types of semiconductors. Intrinsic. And another one is extrinsic. Intrinsic का क्या मतलब है? What do you mean by intrinsic? प्योर. मैम ये प्योर होता है. Pure. कोई impurity extremely pure. They are highly pure semiconductors. There are no impurity being added, right? Now Yes, next is ma'am. extrinsic. अच्छा फिर अगर प्योर होते हैं तो उसमें फिर कंडक्शन कैसे होता है? अभी हमने बोला ना कि उसका बैंड गैप जो है वो 1.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और 0.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होता है. तो फिर कंडक्शन कैसे होगा? प्योर है बिल्कुल. कंडक्ट करने के लिए ना हमें हाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है. उसकी टेम्परेचर को बढ़ा के इसे कंडक्शन बैंड में रखती है. मैम इसको टेम्परेचर बढ़ा के डॉपिंग करते हैं
कि या तो थर्मली जनरेट कर देते हैं कोई एनर्जी, या फिर कोई नेचुरली कोई कॉज हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, ये जो मटेरियल्स हैं ये क्या करने लगते हैं, कंडक्ट करने लगते हैं। थर्मल मतलब कोई हीट प्रोड्यूस कर दो, हीट मतलब कोई टेम्परेचर दे दो इनको, और उसके बाद इनमें कंडक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है, राइट। बट नाउ व्हाट वी वांट इज, हम तो चाहते हैं भाई यहाँ बहुत ज्यादा कंडक्शन हो जाए इनकी, है ना, तो हम क्या करते हैं, इनमें कुछ डोपिंग कर देते हैं। तो डोपिंग, व्हाट इज डोपिंग? द एडिशन ऑफ एनी इम्प्योरिटी इन द impurities added. Impurities added. मैम impurities को ऐड करते हैं उसमें। बिल्कुल, किसी इम्प्योरिटी को ऐड कर देते हैं इन द प्योर सेमीकंडक्टर्स, देन दे आर नोन एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, राइट। अच्छा, कुछ ऐसा होता है, कोई रेशियो होती है ऐड करने की, बस ये ऐड कर दो, बस कितना भी ऐड कर दो, टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे हमने चीनी डालते हैं ऐसा कर देते हैं, ऐसा है कि कितना कितना ऐड करना होता है, या फिर कितना भी ऐड कर दो, इट इज 1 part in 10 millions, 10 part मतलब 10 मिलियन में एक पार्ट हम इंट्रोड्यूस करते हैं। कहने का मतलब ये है कि if I draw the diagram of any silicon lattice, ये सिलिकॉन लैटिस सबको दिख रहा है, मैं बना रही हूँ, Yes. ओके। तो इसके अंदर कुछ पार्ट्स है ना, कुछ एटम्स हैं, आपको एटम्स दिख रहे हैं सिलिकॉन के, तो ऐसे 10 मिलियन सिलिकॉन एटम्स में ये ऐसे रिपीटिंग होंगे, ये सब रिपीटिंग स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। तो ये रिपीटिंग स्ट्रक्चर्स में व्हाट विल गेट इज 10 मिलियन, जब ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, 10 मिलियन समझते हो ना कितना होता है, कितना होता है 10 टू पावर, कितना होता है भाई 1 मिलियन में कितना होता है मैम 10 लाख। तो कितनी कितनी 10 टू पावर कितना लिखूं, 10 टू पावर 6 मतलब, ठीक है। यस मैम। 10 मिलियन में एक पार्ट इंक्लूड करते हैं, अगर ये पूरा 10 मिलियन है तो मैं इसके अंदर एक कोई इम्प्योरिटी ऐड करूंगी, सपोज मैंने यहाँ करी, वो मैंने एल्यूमिनियम कर दी, मतलब एक पार्ट 10 मिलियन में मैं ऐड कर सकती हूँ, दिस इज द लिमिट। एम आई क्लियर? ऐसा नहीं है कि मेरी मर्जी नहीं है कि मैं कितना भी डाल सकती हूँ, नो, आई कैन नॉट पुट एनी अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी इन माय pure semiconductor. There is a limit which is 1 part in 10 millions. You can write down this point that you can dope the impurity in the ratio 1:10 million. Now next is, what is doping? The process of adding the impurity in the pure semiconductors is known as doping. It is known as Doping. Doping. तो doping हम कितने तरीके की कर सकते हैं? 2 types. 2 types. N type और P type. बिल्कुल, P-type N-type or and N. P-type. Now, what are N-type and what are P-types? Extrinsic semiconductors are now being classified as N-type semiconductors. Extrinsic semiconductors को दो तरीके से हम डिफाइन करेंगे, N-type और P-type. P type. राइट। पीरियोडिक टेबल में जब हम बात करें हमारी 15 ग्रुप की, तो 15 ग्रुप एलिमेंट्स को जब मैं ऐड करती हूँ सिलिकॉन या जर्मेनियम में, तो कौन कौन से 15 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं भाई? मैम phosphorus. वेरी गुड। और फास्फोरस, बोरोन, आर्सेनिक, एंटीमनी, Bismuth. Yes ma'am. बिस्मथ, ये सब क्या होते हैं हमारे 15 ग्रुप एलिमेंट्स। 15 groups. जब मैं इनको ऐड करती हूँ इन दिस सिलिकॉन और जर्मेनियम, दे आर नोन एज एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, और हम इस इम्प्योरिटी को बोलते हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। पेंटा मींस जिसके outermost cell में जिसके 5 वैलेंस है, shallow. कितने 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 इलेक्ट्रॉन्स हो आउटरमोस्ट शेल में? 5. मैम 5. 5। वेरी गुड। 5. मतलब आउटरमोस्ट शेल में मेरे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5 होंगे, 5. इसलिए मैंने इसको नाम दिया है पेंटावेलेंट, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ इम्प्योरिटी इज नोन एज पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। एंड नेक्स्ट वी हैव पी टाइप। फॉर पी टाइप वी हैव 13 ग्रुप एलिमेंट्स। कौन कौन से होते हैं 13 ग्रुप एलिमेंट्स भाई? बोरोन, बोरोन, गैलियम, इंडियम, बोरॉन, गैलियम, इंडियम, एल्यूमीनियम, इंडियम, and so on, indium and so on, right?
So इस टाइप की impurity को हम क्या बोलते हैं? ट्राइवेलेंट Trivalent impurity. ठीक है, trivalent means outermost shell में कितने इलेक्ट्रॉन्स है भाई? 3 3 electrons. 3 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? ठीक है, इतनी बात समझ में आई? नाउ नेक्स्ट इज, एक चीज और मैं बताने भूल गई, सिलिकॉन और जर्मेनियम की दोनों जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनका नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट? नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारा सेमीकंडक्टर्स का रेजिस्टेंस कम होता है। While for the case of conductors, we have positive temperature coefficient. मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। तो इसीलिए मैंने अभी एक बात कही थी यहाँ पर कि हम थर्मली मतलब हीट जनरेट करके कंडक्शन कर सकते हैं। हीट जनरेट करना मतलब उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, कंडक्शन हो रही है, मतलब रेजिस्टेंस उसका कम हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि semiconductors have negative temperature coefficient of resistance, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होता है। Is this clear to everybody? Yes, ma'am. So now we can wind up now. So today we have studied about the types of materials which are conductors, semiconductors and insulators. हमने तीनों को बैंड डायग्राम मैम रेजिस्टेंस बढ़ाने से टेम्परेचर कम होता है। रेजिस्टेंस बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस अच्छा रेजिस्टेंस कम होता है, सॉरी मैम। बिल्कुल, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होता है। जब अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो हम उसको बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, राइट? देन हमने किया एनर्जी बैंड डायग्राम के बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने किया टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। कितने टाइप्स के होते हैं? इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। देन एक्सट्रिंसिक के अंडर हमारे पास, हाँ जी बोलिए, टू टाइप आते हैं उसमें भी। Okay, so next we have extrinsic semiconductors. We have another two types, which are N-type and then P-type. In the next class, if we will be continuing, I would like to tell you कि N-type semiconductor कैसे बनाते हैं और P-type semiconductor हम कैसे बनाते हैं और उसमें कौन-कौन से immobile ions होते हैं और कौन-कौन से उसके अंदर electrons या holes होते हैं, right? फिर मैं आपको एक क्लास में ये भी बताऊंगी कि holes कैसे conduct करते हैं और electrons कैसे conduct करते हैं electricity. Alright, then again I would like to tell you electrons और holes जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होना चाहिए या सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होना चाहिए। Then we'll proceed on to the diode part, right? Although first unit में आपके और भी बहुत कुछ है, but this is the basics of semiconductors. Any doubt to anybody? No, No, ma'am. ma'am. So now we can wind up the class. I guess this is sufficient for the demo class. If you want, we'll proceed ahead. Right? Give your feedbacks in the WhatsApp group created by Pooja ma'am, and let me know what all we can have in order to have a better run. Right? So see you soon, guys. थैंक यू मैम। Okay, thank you. Thank you, ma'am.